Camera, lights, action. Okay, so hello and welcome to every single soul watching this video. This is Somansh and you are watching Somro. आज की वीडियो जैसा आपने टाइटल में देखा इट्स ऑल अबाउट हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स इन ट्रैफिक दिस Xpulse 200. So I received some messages, people asking me that if they can commute on Xpulse on daily basis in the city traffic, etc. So I thought कि why not make a video on it so that it can help others too. तो कैसा है कि I am using this bike as a daily commuter for around past 4 months I think, and I am riding this for at least 25 kilometers a day, and this is the kind of traffic, this is the daily route which I take, so you guys can see in which kind of traffic I do travel, I do ride daily. So the thing is, will I recommend you to buy this bike just for doing, if you are a person who only go to office and colleges, etc. So if buying this bike is the only concern for you to ride in the city traffic, then you have to keep some points in your mind while buying it, and I'm going to tell you that points right now. So the first thing is you have to see what your height is, because this is a kind of tall bike. Its seat height is I think around 820 to 830 mm. So if your height is below 5'8", you might find it little bit of difficult to flat footing your foot on the ground, because in traffic there are incidences where you have to put your foot on the ground too frequently, and you won't like falling your bike on the standing condition just because your foot can't reach the ground properly. So that is one thing you have to keep in mind. So if your height is above 5'8", then you can do it pretty good, there will be no issue in it. But if below that, then you have to try. What you can just do is you can ask for someone, if you have any friend who has Xpulse, then you can ask them to take a test ride in the traffic, or you can just take a test ride in the traffic area by any dealership. So that is the first point. The second point is that this bike has a very low torque. The torque is not that great. So in city what happens that you have to overtake some around vehicles instantly sometimes. So at that point you might feel that there is some lag in the torque. It is not that it is not bad or anything, but it is just because you want to ride it in the city, there is no point in it. अब आप बोलोगे कि स्प्लेंडर जा रही है उसमें कौन सा इतना टॉप,
तो हाँ, वो बात ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट माइंड टू, मतलब आप देख लो ना, जो आर आस्किंग टू बाय एक्सपल्स, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा. द थर्ड थिंग इज़ bike hating issues. So I purchased this bike in October end, and till then yet there are no such heats in Delhi. The weather are pretty, you can say, good in terms of temperature. So I'm not sure कि बाइक कितनी हीट होगी जब भी क्या कहते हैं, गर्मी होगी बहुत ज़्यादा. बट स्टिल आई कैन से कि थोड़ा बहुत तो होगा कंपेरेटिवली अदर बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि इट हैज़ अ हिस्ट्री कि BS4 में बहुत हीट होती थी. उसके बाद में इन लोगों ने ऑयल कूलर लगाया है, तो पता नहीं वो कितना ज़्यादा डिफरेंस फील करता है. वो चीज़ तो गर्मी आने में पता लगेगा. तो 4 पॉइंट था कि ये बाइक जैसे कि लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, तो सस्पेंशंस काफ़ी सॉफ्ट है, जो कि सिटी राइड में काफ़ी आपको कंफर्टेबल तो लगेंगे. बट एट द सेम टाइम द फ्रंट सस्पेंशन हैज़ अ डाइव. तो आप जब भी फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे तो बाइक थोड़ी डाइव होती है, जो कि सिटी में थोड़ा कभी कभी अनकम्फर्टेबल हो जाता है. सो दैट इज़ वन थिंग ऑल्सो. अदरवाइज़ द बाइक इज़ टू लाइट. बाइक बहुत लाइट है, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि, मतलब आपको मैन्युअलिटी के अंदर फिल्टरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी कि हाँ सब कुछ एकदम बढ़िया आएगा. तो उस मामले में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उस चीज़ों को क्लियर आउट कर लो, तो आई थिंक यू कैन डिसाइड कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर सिर्फ आपका मूड सिटी में चलाने का तो. सो कंक्लूडिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस बाइक इज़ नॉट सिटी बाइक. तब आप सिटी बाइक की जगह इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाइक के डायमेंशंस थोड़े ऊंचे हैं, लंबी है बाइक, थोड़ा टर्निंग रेडियस इतना अच्छा नहीं है. तो वही सब चीज़ें हैं कि आपको देखनी पड़ेगी. और बात करूँ मैं कि मतलब जैसे मेरा, अगर आप देखो, आप बोलोगे भाई तुम भी तो करो, तो हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, बट मेरा बहुत ज़्यादा बम्पर ट्रैफिक नहीं होता है. जब कभी होता है तो थोड़ा बहुत होता है. और उसके अलावा मेरा मेजर रीज़न यही है कि जैसे मैं मंडे टू सैटरडे रोज़ इतना करता हूँ, तो उसके अलावा मैं संडे को या बीच में कभी कभी कहीं राइड पर निकल जाता हूँ. जैसे संडे मॉर्निंग राइड पे चले गया, या फिर आसपास में कोई एरिया विज़िट करने चले गया. तो अगर आप वो सब भी करते हो तो आई थिंक आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सिटी के अंदर, जैसे मैं भी करता हूँ. कभी कभी लगता है, बाकी हमेशा नहीं लगता. तो बस बात यही है कि आपको देखना होगा कि आपको ये चीज़ जमती है कि नहीं जमती है. इसके अलावा बाइक में मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दिक्कत देगी. हाँ, इसमें थोड़ा नॉकिंग का इशू क्रिएट हो जाता है जैसे बाइक थोड़ी चलती है, स्पेशली ट्रैफिक के अंदर. तो वहाँ पर जहाँ नॉकिंग आ गया वहाँ पर पावर लॉस तो फील हो गया होगा. तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है. मैंने अपना पूरा इंजीनियरिंग टाइम का दिमाग लगा दिया, सारी चीज़ें देख ली, और मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं कि जो चीज़ें करके मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ. तो मैं अभी आने वाले टाइम में उसी के ऊपर काम करूँगा और इसके ऊपर वीडियोस बना करके आपको बता दूँगा. तो जिससे कि अगर आपको भी अगर वो चीज़ सॉल्व होती है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. नॉकिंग का इशू है इसके अंदर, तो वो चीज़ का भी एक वीडियो आएगा. ट्रायल्स वीडियो आएंगे कि क्या क्या मैं ट्राई करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है सारा. तो 3 चीज़ें मैंने सोची कि जो करने से शायद ये सब जो इशू है इसका, नॉकिंग का, टैप का, ये सब क्लियर हो जाएगा. तो
व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये बाइक आप ले सकते हो, बट अगर आपका मोटिव सिर्फ सिटी में चलाने का है, अगर आप 90% सिटी में चलाते हो और 10% ही बाहर कहीं आपका मूड है लेके जाने का, तो आई थिंक कि मतलब दूसरे ऑप्शंस पहले देख लो। बस सब ले रहे हैं इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है, और सब अगर लेते रहेंगे बिना रीज़न के, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू अननेसेसरी हो जाएगी, क्योंकि बाइक जिस रीज़न से बनी है, जिस चीज़ के लिए बनी है, उसको उसी चीज़ में यूज़ करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इट इज़ एन ADV सेगमेंट बाइक, सो आप इसको लेकर के रोज़ ट्रैफिक में जाओगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। बाकी क्लच प्लस तो इसका काफ़ी स्मूथ है, वो सब चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। गियर का थोड़ा स्टिफनेस का और रॉन्ग न्यूट्रल का इश्यूज़ हो रहा था पहले मेरे को, बट मैंने अभी सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करवा लिया इसका, मतलब गल्फ पावर ट्रैक 40 लगाया। उसके बाद से मेरे को अभी तो कुछ नहीं लगा। अराउंड 280 किलोमीटर्स चल गई बाइक उसके बाद में, तो तब से लेके मुझको अभी तक तो कुछ नहीं लगा। बाकी अब थोड़ा और जब होगा तब मैं आपको इसका भी रिव्यू बताऊंगा कि कैसा है। बाकी हाँ अच्छा है, डिफरेंस तो है। और बस यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको देखना होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को और चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, तो आप बताओ कमेंट करके, और कितना आप लोग एग्री करते हो ये भी बताओ। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और एनीवन who are planning to buy this bike, तो उनको भी कुछ क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो you know what to do। बाकी I'm trying to bring some quality content, some informative content here, so keep in touch, keep in alert, bell icon type जो भी वो कुछ है उसको पुश कर दो, तो जब भी वीडियो डालूँगा पता लग ही जाएगा आप लोगों का। और मैंने सोचा कि जब मैं ट्रैफिक में चलाने की बात कर रहा हूँ तो ट्रैफिक में ही चला करके आपको जो मैं रोज़ चलाता हूँ उसमें आपको बताऊँगा। तो बहुत ही बेसिक सा था, अगर आप लोगों को सही लगा है तो बताओ। और वैसे थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। पीस आउट गाइस।